फंक्शंस की वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिकरेंस फॉर्मूला ऑफ द बेसल्स फंक्शंस। I already in detail explained about the Bessel function in last video. You can see that today we will see the recurrence formula number 1 for the Bessel function. Here we can see the various Bessel function identities. So first recurrence formula is x jn dash equal to n jn minus x of jn plus 1. So we have to establish this relationship as we know that as we know that as we know that what is jn? Jn is sigma r equal to 0 to infinity minus 1 raised to r divided by r factorial n plus r factorial dot x by 2 raised to n plus 2r. That is the Jn Bessel function, and this relationship we have derived in last video also. So what we can do here, we can replace n plus r factorial to gamma n plus r, because we know that n factorial is, what is n factorial? It is gamma n plus 1. So what will be the n plus r factorial? It will be the gamma n plus r plus 1. So looking that we can plug n plus r factorial to gamma n plus r plus 1. So what we can plug here? Jn equal to sigma r equal to 0 to infinity minus 1 raised to r factorial gamma n plus r plus 1 dot x by 2 raised to n plus 2r. Now we have to differentiate here with respect to x, because here in left hand side you can see that you have to find the jn dash, which is the first derivative with respect to x. So here we will differentiate here. What will be the jn dash? With respect to x, this coefficient will be differentiated x by 2 raised to n plus 2r. तो यहाँ पे क्या होगा, n plus 2r आगे आ जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा? सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेज टू r डॉट n प्लस 2r ब्रैकेट क्लोज r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 डॉट x by 2 raised to n plus 2r minus 1. And establishing the chain rule here from the differentiation, we have to go inside also. So what will the differentiation of the x by 2? It will become the 1 by. So here what we get? Here we get the jn dash, differentiation of the Bessel function jn. Now what we have to do here? अब अपन को यहाँ पे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप देखें इस ब्रैकेट के अंदर तो है, ब्रैकेट में है n प्लस 2r, तो एक टर्म तो अपनी चलेगी n के साथ और एक टर्म अपनी चलेगी 2r के साथ. तो इसको अगर स्प्लिट करें तो व्हाट वी विल गेट व्हेन वी स्प्लिट one term with the n, another term with the 2r, because here n plus 2r, here we will get the two term, okay, one with the n, another one is the 2r. So what we will get on the right hand side, so we will get jn dash equal to, जरा ध्यान से देखना, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n माइनस 1 रेज टू r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 डॉट गामा n प्लस r प्लस 1 डॉट x by 2 raised to n plus 2r minus 1 dot 1 by 2 plus another term with the 2r, okay, so sigma r equal to 0 to infinity minus 1 raised to r, another one with the 2r, r factorial gamma n plus r plus 1 dot x by 2 raised to n plus 2r minus 1 dot 1 by 2. So here we have split the function one with the n, another one with the 2r. Now here you can see that
अपन को जे एन डैश को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो यहाँ पे अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी पूरा x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टर्म में अगर आप अगर ध्यान से देखेंगे अगर यहाँ पे अगर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे एक x/2 आ जाएगा। ओके, तो x/2 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 और यहाँ पे x/2 की पावर क्या n+2r -1, तो -1 कैंसिल हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो अपना यहाँ पे क्या बन जाएगा n+2r। ओके, और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। ओके, और ये अपना यहाँ पे 2 से 2 यहाँ पे अपना ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तब अपने पास देखो क्या आएगा रिवाइज, और अपने पास रिवाइज क्या आएगा x jn डैश अपने पास आ गया, x jn डैश अपने पास आ गया n सिग्मा r इक्वल टू 0 to infinite -1 raised to r r factorial gamma n plus r plus 1 dot x/2 raised to n plus 2r plus x sigma r equal to 0 to infinity -1 raised to r dot r upon r factorial gamma n plus r plus 1 dot x/2 raised to n plus 2r minus 1। अब अगर आप जरा ध्यान से देखें तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये अपना jn है। देखिए जरा jn क्या था, jn अपना ये था, jn अपना क्या सिग्मा r इक्वल टू 0 to infinity -1 raised to r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल गामा n plus r plus 1 डॉट x/2 raised to n plus 2r। तो ये फर्स्ट टर्म तो अपने क्या होगी jn होगी। ओके, तो अपना रिलेशनशिप है n jn, तो ये तो अपने पास दोस्तों आ गया। अब अपना टारगेट इस वाले टर्म के ऊपर है, तो ये अपना क्या है jn है, तो अपने पास ये टर्म तो आ गई x jn डैश इक्वल टू n jn। तो इस रिलेशनशिप के अंदर अब अपन को इस वाले टर्म में फोकस करना है, तो इस वाले टर्म में अब देखो अपन फोकस करेंगे, जरा ध्यान से देखना कैसे फोकस करेंगे यहाँ पे। अब अपन को इसको देखना है प्लस x सिग्मा r इक्वल टू 0 to infinity -1 raised to r dot r upon r factorial gamma n plus r plus 1 dot x/2 raised to n plus 2r minus 1। अब अपन को इसको बनाना है j of n plus 1 माइनस j of n plus 1 अपन को यहाँ पे बनाना है, क्योंकि अपना जो रिलेशनशिप आएगा वो आएगा माइनस यहाँ पे आएगा माइनस x j of n plus 1। तो ये चीज अपन को यहाँ पे बनानी है। तो ये कैसे बनाएंगे दोस्तों, अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन अपन यहाँ पे लेंगे, है ना। क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन अपन दोस्तों ले सकते हैं r माइनस 1 इक्वल टू s। ये सब्स्टिट्यूशन अपन को लेना पड़ेगा r माइनस 1 इक्वल टू s। और ये सब्स्टिट्यूशन क्यों ले रहे हैं इसका रीजन मैं बताऊंगा। अब सीरीज को यहाँ पे चलाएंगे s इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक की सीरीज को चलाएंगे, और ये सब्स्टिट्यूशन लेंगे r माइनस 1 इक्वल टू s। इसका रीजन ये कि r से r भी अपना कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास क्या है r फैक्टोरियल है, तो r फैक्टोरियल अपना क्या हो जाएगा r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। इस r फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये r से ये r अपना कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे अपने पास क्या आ जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो नीचे अपने पास दोस्तों क्या आ गया r माइनस 1 फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। अभी सब्स्टिट्यूशन मैंने नहीं लगाया है, और यहाँ पे है अपना x/2 रेज़ टू n प्लस 2r माइनस 1, और ऊपर चल रहा है माइनस 1 रेज़ टू r। अब दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, r माइनस 1 को अपन को s एज्यूम करना है, और इस सीरीज को चलाना है सिग्मा s इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी तक, और अपन को यहाँ पे j ऑफ n प्लस 1 लेके आना है, और r माइनस 1 को क्या मानना है, s मानना है। ठीक है, तो r माइनस 1 को अगर s मानेंगे तो r की वैल्यू क्या होगी s प्लस 1, तो r माइनस 1 ये अपना हो गया s फैक्टोरियल, और r की वैल्यू s प्लस 1 हो जाएगी, तो ये अपना क्या हो जाएगा n प्लस s प्लस 2 हो जाएगा। r की जगह s प्लस 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 रेज़ टू r की वैल्यू क्या है s प्लस 1, तो ये हो जाएगा s प्लस 1, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा x/2
रेस टू n प्लस r की जगह अगर आप पुट करेंगे 2, r की जगह क्या पुट कर रहे हैं अपन s प्लस 1 प्लस 1। ओके, तो ये अपना हो जाएगा n प्लस 2s प्लस 2। देखो n प्लस 2s माइनस 1 है यहाँ पे, n प्लस 2r माइनस 1, तो n प्लस 2s प्लस 2 हो जाएगा। तो ये अपना क्या आ जाएगा x बाई 2 रेस टू n प्लस 2s प्लस 2, n प्लस 2s प्लस 2 हो जाएगा। अभी तक अपन ने क्या किया है, r माइनस 1 को अपन ने s माना है, तो यहाँ पे s फैक्टोरियल हो गया, r की जगह s प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे n प्लस 2r माइनस 1 था, तो r की जगह s प्लस 1 रखा, तो अपने पास क्या हो गया n प्लस 2s प्लस 2 माइनस 1, तो n प्लस 2s प्लस 1, ये 1 आएगा, n प्लस 2s प्लस 1 अपने पास आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर इस चीज को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अपन सबसे पहले तो देखो अपना जो डेरिवेशन था यहाँ पे माइनस चाहिए और बाहर अपना यहाँ पे प्लस चल रहा था, तो माइनस 1 रेस टू s प्लस 1 में से माइनस 1 रेस टू, इसको अगर स्प्लिट कर दे, माइनस 1 रेस टू s प्लस 1 को क्या लिखा जा सकता है, माइनस 1 रेस टू s डॉट माइनस 1 रेस टू 1, है ना। तो ये माइनस साइन अपना बाहर आ जाएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 1 रेस टू s प्लस 1 की जगह ये हो जाएगा s डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल की जगह s फैक्टोरियल आ गया, और गामा यहाँ पे चल रहा था अपना n प्लस s प्लस क्या चल रहा था 2, और यहाँ पे चल रहा था x बाई 2 रेस टू अपना क्या चल रहा था n प्लस 2s प्लस 1। ओके, n प्लस 2s प्लस 1, और बाहर अपना चल रहा था प्लस x, उसकी जगह आ जाएगा माइनस का x अपने पास बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपन को प्रूव करना है यहाँ पे बाहर क्या है, माइनस का x चल रहा है, यहाँ पे पहले प्लस का x था, तो माइनस 1 रेस टू s प्लस 1, r की जगह क्या पुट किया s प्लस 1, तो उसको स्प्लिट कर दिया, माइनस 1 रेस टू s प्लस 1 को माइनस 1 रेस टू s डॉट माइनस 1 रेस टू 1, तो माइनस साइन एक अपना यहाँ पे बाहर आ गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें n प्लस s प्लस 2 और n प्लस 2s प्लस 1, इसको अपन को we have to write in the form of j of n plus 1। अब j of n plus 1 क्या होगा, n की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे, n की जगह रिप्लेस करेंगे n plus 1, तो s की जगह क्या रिप्लेसमेंट होना चाहिए, s plus 1। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, n plus s plus 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखो, इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ s फैक्टोरियल, n की जगह n plus 1, और यहाँ पे हो जाएगा s की s plus 1, n प्लस s प्लस 2 में से एक 1 यहाँ पे यूटिलाइज होगा n प्लस 1, और एक होगा s के साथ s प्लस 1। ओके, और यहाँ पे क्या हो सकता है अपने पास x बाई 2 रेस टू n प्लस 2s प्लस 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अपना फॉर्मूला होता है n प्लस 2r, और s की टर्म में होगा तो अपना फॉर्मूला क्या होना चाहिए n प्लस 2s, और n की जगह n प्लस 1 आएगा, तो अपने पास यहाँ पे क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 प्लस 2s, n प्लस 1 प्लस 2s। ओके, तो इसको जरा ध्यान से देखें, अगर r में चल रहा था सिग्मा r इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक, तो अपना jn क्या था, जरा ध्यान से देखें, अगर सिग्मा r इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक चल रहा था तो अपना jn क्या था, यानी बेसल फंक्शन अपना jn क्या था, वो था माइनस 1 रेस टू r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 डॉट x बाई 2 रेस टू n प्लस 2r। ओके, तो j ऑफ n प्लस 1 अगर होगा तो n की जगह क्या आना चाहिए, n प्लस 1, और यहाँ पे भी n की जगह क्या आएगा, n प्लस 1, और सिंस ये चल रहा है s इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक, तो यहाँ पे r की जगह क्या आ जाएगा, s आ जाएगा जो अपना है, और यहाँ r की जगह क्या होगा s, और n की जगह क्या होना चाहिए, s होना चाहिए, n की जगह तो n ही रहेगा, r की जगह क्या होगा s, n प्लस s प्लस 1, और x बाई 2 रेस टू n प्लस 2s, और अगर ये j ऑफ n प्लस 1 बन जाता है तो अपना n की जगह क्या आना चाहिए, n प्लस 1, तो देखो n की जगह अपना क्या आ रहा है, n प्लस 1, और यहाँ पे भी n की जगह अपना क्या आ रहा है, n प्लस 1, तो ये अपना क्या है, ये वाली चीज अपनी क्या है, j ऑफ n प्लस 1। तो दोस्तों अपना ये वाली जो प्रूफ अपन को जो करना था उसके अंदर अपने पास ये जो चीज है पूरी, ये अपने पास क्या आ गई, माइनस एक्स ऑफ जे ऑफ n प्लस 1।
माइनस एक्स ऑफ जे ऑफ एन प्लस वन। तो अपना एन जे एन तो ऑलरेडी था, माइनस एक्स ऑफ जे ऑफ एन प्लस वन ऑलरेडी आ गया, और इस साइड तो अपन चल ही रहे थे एक्स ऑफ जे एन डैश। तो दोस्तों ये अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। यहाँ पे प्रूफ बड़ा आसानी से हुआ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अपने सब्स्टिट्यूशन लगाया r माइनस वन इक्वल टू एस। ये सब्स्टिट्यूशन लगाने से अपना पहले सीरीज r इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक चल रही थी, अब s इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक चल रही है, और अपन को वी नीड j ऑफ n प्लस वन। ओके, तो वहां पे अपन को कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करना पड़ेगा n प्लस वन की फॉर्म में jn को अपन को बनाना पड़ेगा। तो वो अपन ने बनाया, तो अपना ये प्रूव हुआ। तो ये रिकरेंस फॉर्मूला नंबर 1 था, और रिकरेंस फॉर्मूला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिकरेंस फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 के बेसिस पे काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो रिकरेंस फॉर्मूला रिमेंबर भी करना है, और रिकरेंस फॉर्मूला कैसे बनते हैं ये भी अपन को समझना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।